Hi everyone, welcome to our English learning class 11. In this class, you will learn more about simple future tense. So let's start our class. आपको आज की इस क्लास में खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी 11वीं क्लास है। इस क्लास में आप सिंपल फेल मुस्तकबिल, जो सादा फेल मुस्तकबिल है, उसके बारे में मज़ीद जानेंगे। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। In our last class, we have discussed briefly that what is the simple future tense. हमारी पिछली क्लास में हमने देखा था कि सादा फेल मुस्तकबिल क्या है। आइए मज़ीद जानते हैं इसके बारे में। For example, positive sentence is I will eat breakfast tomorrow. We have discussed this sentence in our last class too. And now we are going to change it into negative sentence, and that is I will not eat breakfast tomorrow. Here you will see that we have used not right after the auxiliary verb or helping verb, which is will, and the sentence is same. So the sentence is I will not eat breakfast tomorrow. Now we will see that how to change it into interrogative sentence. Will I eat breakfast tomorrow? Here you will see that we have used will, auxiliary verb or helping verb before the subject I, and then we have used the first form of verb. So sentence is will I eat breakfast tomorrow? In the next sentence, which is negative and interrogative at the same time, here you will see the sentence is will I not eat breakfast tomorrow? Here we have used will, which is auxiliary verb or helping verb, and right after will we have used first person singular noun, which is I, and right after we have used not, and then our sentence is will I not eat breakfast tomorrow? मिसाल के तौर पर हमारा मस्बत जुमला है I will eat breakfast tomorrow. मैं कल नाश्ता खाऊंगा या खाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई के फ़ौरन बाद हमने जो है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब विल, इसको इस्तेमाल किया है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया है और हमारा जुमला बन गया आई विल ईट ब्रेकफास्ट टुमारो। अब देखते हैं कि हमने इसको मनफी जुमले में किस तरह से तब्दील करना है। आई विल नॉट ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगाया है और फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम उसी तरह से, तो हमारा जुमला बन गया आई विल नॉट ईट ब्रेकफास्ट टुमारो। मैं कल नाश्ता नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। अगर इसी जुमले को हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी सवालिया में, तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। विल आई ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, क्या मैं कल नाश्ता खाऊंगी या खाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है यानी हेल्पिंग वर्ब है विल है, जो कि उसको हम सब्जेक्ट आई से पहले ले आए, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन से पहले ले आए और उसके फ़ौरन बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और हमारा जुमला बन गया विल आई ईट ब्रेकफास्ट टुमारो। अगर इसी जुमले को हमने मनफी और सवालिया में एक साथ में चेंज करना है तो फिर हम कैसे करेंगे। जहाँ पर आप जुमले को देख सकते हैं विल आई नॉट ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, क्या मैं कल नाश्ता नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब विल है उसको हमने सब्जेक्ट आई से पहले लगाया और आई जो हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हमारा जुमला बन गया विल आई नॉट ईट ब्रेकफास्ट टुमारो, क्या मैं कल नाश्ता नहीं खाऊंगी या खाऊंगा। Now it's time to support us, so do subscribe our channel and hit the bell icon for more classes. हमारे चैनल को सपोर्ट लाजमी करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर आने वाली जो नई क्लास है वो आपको सबसे पहले मिले। Next sentence is she will study for her exam tonight, which is a positive sentence. Now we will change it into negative sentence. She will not study for her exam tonight. Here you will see that we have used auxiliary verb or helping verb, which is right after our third person singular noun, which is she, and after will we have used not and then the first form of verb, which is study. So the sentence is she will not study for her exam tonight. Now
we are going to change it into interrogative sentence, which is will she study for her exam tonight. Here you will see that we have used auxiliary verb or helping verb right before our third person singular noun, which is she, and then we have used the first form of verb. So the sentence is will she study for her exam tonight. Now we are going to change it into negative and interrogative at the same time. Here you will see that the sentence is will she not study for her exam tonight. Here we have used auxiliary verb or helping verb, which is before our third person singular noun, which is she, and then we have used not right after she, and then the first form of verb, which is study. So the sentence is will she not study for her exam tonight. हमारा अगला जुमला है शी विल स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट। इसमें आप देख सकते हैं कि ये मस्बत जुमला है और इसका मतलब ये है कि शी विल स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट, वो आज रात अपने इम्तहान के लिए पढ़ेगी। इसको हमने मनफी में किस तरह से तब्दील करना है, शी विल नॉट स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट। आप देख सकते हैं कि जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है शी है और इसको सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो कि विल है इसको लगाया और इसके फ़ौरन बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया। नॉट के फ़ौरन बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ स्टडी, जो कि स्टडी है। तो हमारा जुमला बन गया शी विल नॉट स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट, वो आज रात अपने इम्तहान के लिए नहीं पढ़ेगी। आगे देखते हैं इसी को हमने सवालिया में किस तरह से तब्दील करना है। विल शी स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब है विल, उसको हम पहले ले आए हैं, हमारा सब्जेक्ट शी इसको बाद में ले आए हैं और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा जुमला बन गया विल शी स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट, क्या वो आज रात अपने इम्तहान के लिए पढ़ेगी। आगे देखते हैं हमने इसी को मस्बत और सवालिया दोनों में एक साथ किस तरह से तब्दील करना है। विल शी नॉट स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले आए हैं यानी विल को, उसके फ़ौरन बाद हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमारा सेंटेंस बन गया विल शी नॉट स्टडी फॉर हर एग्ज़ाम टुनाइट, क्या वो आज रात अपने इम्तहान के लिए नहीं पढ़ेगी। नेक्स्ट सेंटेंस इज they will arrive at 5 p.m. This is a positive sentence and its negative sentence is they will not arrive at 5 p.m. Here you will see that we have used our helping verb right after the third person plural noun which is they, and after that we have used not, and then our sentence is they will not arrive at 5 p.m. Now its interrogative sentence is will they arrive at 5 p.m. Here we have used will before our third person plural noun and then first form of verb which is arrive. So sentence is will they arrive at 5 p.m. Now we will see that how to change it into negative and interrogative at the same time. So you will see that the sentence is will they not arrive at 5 p.m. Here you will see that we have used our helping verb will before our third person plural noun and then we have used not and first form of verb. So sentence is will they not arrive at 5 p.m. इस जुमले को देखें जो कि मस्बत जुमला है they will arrive at 5 p.m. वो 5 बजे पहुँचेंगे। अगर हमने इसी को मनफी में तब्दील करना हो तो हम कैसे करेंगे। they will not arrive at 5 p.m. वो 5 बजे नहीं पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन दे है उसके फ़ौरन बाद हमने हेल्पिंग वर्ब विल लगाया, उसके फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया और फिर हमारा जुमला बन गया दे विल नॉट अराइव एट 5 p.m. आगे देखते हैं इसी को हमने सवालिया में किस तरह से तब्दील करना है। विल दे अराइव एट 5 p.m. क्या वो 5 बजे पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब हम पहले ले आए हैं, उसके फ़ौरन बाद हमने अपना सब्जेक्ट दे या फिर थर्ड पर्सन जो प्लूरल नाउन है उसको लगाया है और उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जुमला बन गया विल दे अराइव एट 5 p.m. क्या वो 5 बजे पहुँचेंगे। इसी को हमने सवालिया और मनफी में एक साथ में किस तरह से तब्दील करना है। विल दे नॉट अराइव एट 5 p.m. यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हेल्पिंग वर्ब
को पहले ले आए, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट दे है, इसके फ़ौरन बाद नॉट लगाया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या पहली फॉर्म। तो आप देख सकते हैं जुमला क्या बन गया, विल दे नॉट अराइव एट 5 PM, क्या वो 5 बजे नहीं पहुंचेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट विल रेन इन द इवनिंग। Now we are going to change it into negative sentence. It will not rain in the evening. Here you will see that we have used will right after our third person singular noun, which is it, and after will we have used not and then first form of verb. So sentence is it will not rain in the evening. Now we are going to change it into interrogative sentence. Here you will see that we have seen this sentence, will it rain in the evening. So here we have used will right before our third person singular noun, which is it, and then first form of verb. So will it rain in the evening. Now we are going to change it into negative and interrogative in the same time. So you will see that sentence is will it not rain in the evening. Here we have used will before our third person singular noun, which is it, and then not, and then we have used first form of verb. So will it not rain in the evening. अगली मिसाल हम देखते हैं जिसका मस्बत जुमला है इट विल रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसका वो हम किस तरह से बनाएंगे, इट विल नॉट रेन इन द इवनिंग। हम यहाँ पर हमारा जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट भी है और ये इट है, इसके साथ हम अपना हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, इसके फ़ौरन बाद नॉट, और फिर हमारा जुमला बन जाएगा इट विल नॉट रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश नहीं होगी। आगे देखते हैं हमने इसी को सवालिया में किस तरह से तब्दील करना है, विल इट रेन इन द इवनिंग। तो आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हम सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा इट, यहाँ पर इसके फ़ौरन पहले हमने अपना जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाया और इसके फ़ौरन बाद हमने हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको लगाया, विल इट रेन इन द इवनिंग, क्या शाम को बारिश होगी। आगे देखते हैं इसी को हम मनफी और सवालिया दोनों में एक साथ किस तरह से चेंज करेंगे। तो आप देख लें जुमले को, विल इट नॉट रेन इन द इवनिंग, यहाँ पर हमने जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले विल को इस्तेमाल किया और सब्जेक्ट इट के फ़ौरन बाद हमने नॉट लगाया, नॉट के फ़ौरन बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमारा जुमला बन गया विल इट नॉट रेन इन द इवनिंग, क्या शाम को बारिश नहीं होगी। That's it for today's lesson. I hope you learned it well with these examples. Thanks for watching and we'll see you in the next video.